So, Assalamu alaikum, dear students. Welcome, welcome back. So, आज जो हमारा टॉपिक है वो है ट्रेड्स के ऊपर. दैट इज द एक्योर ट्रेड एंड इनहेरिटेड ट्रेड. देखिए, ट्रेड जब हम पढ़ते हैं तो मैंने कहा ट्रेड इज द एक्सटर्नल. We just called is a character of an organism. What's in character? Here we call that character simply that a trait, it can be a color of an eye, color of the hair, shape of the skin, even shape of the hair, color of the skin. This can be trait. The color of the flower, the shape of the leaf, okay, the arrangement of the leaves on the stem axis. This is called as phyllotaxy. This also to be called as a trait. So these traits, these features, they can be of two types. One is called acquired traits, and second one is to be called as inherited trait. What's an acquired trait? ओके, एक्योर ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट. जैसे आप जानते हो एक्योर ट्रेट इज अ ट्रेट. एक्योर ट्रेट वो ट्रेट है जो एक ऑर्गेनिज्म एक्योर करता है आफ्टर द बर्थ, या हम ये भी कह सकते हैं कि ये ट्रेट या ये वो करेक्टर जो एक ऑर्गेनिज्म डेवलप करता है बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल चेंजेस या बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेस. It's a trait that is not inherited, or that's not passed from one generation to the next generation because of the genes. No, it is the trait that's being developed in response to the environment. That's called acute trait. जैसे यहाँ पे अगर definition भी लिखनी हो तो you can have a definition over there. You can pen down that trait. A trait of an organism which is not inherited means that that's not inherited means that it's not transmitted from one organism to another organism, but develops in response to the environment. It's called acquired trait. Okay, acquired trait, or we just call that's being developed in response to the environment after the birth. Of the birth, it is to be called as acquired. For example, I will just take the example of the beetles. तो एक प्लेस पे मानो, एक प्लेस पे, एक जगह पे एक बड़ा ग्रुप है बीटल्स का, स्मॉल इंसेक्ट्स का. तो ये बीटल्स जो है किसी टाइम के लिए इनको एक सफिशिएंट फूड नहीं मिलता है. तो व्हाट विल हैपन इफ they will not get a sufficient food for a period of time? They will, what will happen, they will their body size will, their body weight will get reduced. उनका body जो weight होगा वो reduce हो जाएगा. और बॉडी मतलब ये इनका वेट जो रहेगा, बॉडी वेट जो रिड्यूस रिड्यूस हो जाएगा. तो रिड्यूस होने की वजह से इनका जो, हम ये कहेंगे कि ये वो करेक्टर है जो हो that is developed because of environmental, because they do not get sufficient amount of food in that very particular, in that particular geographical area, and because of the starvation their body weight gets reduced. उनका बॉडी वेट जो रिड्यूस हो गया है. लेकिन ये वो ट्रेट है जो ट्रांसमिट नहीं हो जाएगा, क्योंकि ये वो ट्रेट है जो जीन्स की वजह से नहीं हुआ. ये वो ट्रेट है जो हुआ बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंट, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्सेज, बिकॉज ऑफ द character that's being developed, because of the feature that's being developed because of the environment response. तो हम ये भी कहेंगे कि लो वेट ऑफ बिटल इज एन एक्योर ट्रेट which has been acquired in response to the environment. ओके, लेकिन अब क्या हो जाएगा कि ये मानो कि अगर कुछ जनरेशन्स के लिए इनका ये फीचर ट्रांसमिट हो जाएगा, मतलब आप ये समझिए कि एक दो जनरेशन्स में अगर बॉडी वेट जो बिटल्स का है वो कम ही रहेगा. लेकिन हम ये कहेंगे व्हेन द because of the availability of food. लेकिन जब because of the we culture that food is not available in a sufficient quantity, if this trait gets transmitted to the 2 or 3 generations, it is because of the food, because of the sufficient amount of food that's not available in that particular geographical area. But तो लेकिन हम इसे evolution नहीं कहेंगे. एवोल्यूशन इसीलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इफ़ दे विल गेट अ सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फूड, अगर उनको एक दो जनरेशन के बाद, एक टाइम गैप के बाद उनको एक सफिशिएंट फूड अमाउंट मिलता है, तो वो अपना
वेट फिर से रिगेन करेंगे। तो ये वो करेक्टर है जो जनरेशन से जनरेशन पास नहीं हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हम कहेंगे एक्योर ट्रेट। तो दिस इज अ ट्रेट that does not pass or that cannot be transmitted from one generation to next generation। तो हम ये कहेंगे this is a trait that's not transmitted from one generation to next generation। मैंने अभी ये कहा कि अगर चलो इनको स्टारवेशन हुई है, फूड नहीं मिला, इनका बॉडी वेट कम हो जाएगा, बॉडी जो साइज है रिड्यूस हो जाएगा। चलो अगर ये इनके 2 या 3 जनरेशन तक वहाँ पे फूड अवेलेबिलिटी नहीं होगी, कंडीशंस सेम रहेंगी, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड रहेगा, स्टारवेशन से इनको गुजरना पड़ेगा, तो इनकी इनके एक दो जनरेशन्स के जो बॉडी वेट होगा वो तो रिड्यूस हो जाएगा। लेकिन हम इसे इवोल्यूशन नहीं कहेंगे, क्यों? क्योंकि अगर इनको फिर से फूड अवेलेबिलिटी आ जाती है, सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ फूड मिल जाता है, तो ये अपना वेट फिर से रिगेन करेंगे। तो इस ट्रेट को हम कहेंगे इट इज़ एन एक्योर ट्रेट, बिकॉज ऑफ दिस इज़ अ ट्रेट। ये वो करेक्टर है, ये वो फीचर है जो एक ऑर्गेनिज्म में आया, बीटल्स में आया, बिकॉज ऑफ द इन्वायरमेंटल रेस्पॉन्सेस। सो दिस इज एन एग्जाम्पल। तो मैंने अभी अब ये भी आपसे कहा, इन अदर वर्ड्स वी जस्ट कॉल इट्स एन this trait is because this trait cannot be transmitted to the future generations। So because it's not the trait, it's not the trait, it's not the feature, yeah, it's not the feature that has been present in the genes, or we just call that it's not a feature that it is not feature that has been occurred due to the change in the genes। ओके, ये जीन्स में चेंज नहीं हुआ, इन्वायरमेंट के चेंज होने की वजह से फूड अवेलेबिलिटी नहीं हुई तो फूड रिगेन हो जाएगा। तो इसको हम इवोल्यूशन नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने अभी भी कहा इवोल्यूशन क्यों नहीं कह सकते, क्योंकि स्टारवेशन कंप्लीट हो जाए, फूड अवेलेबिलिटी फिर से हो जाएगा, फिर ये अपना बॉडी वेट रिगेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम दूसरे ट्रेड पे आ जाते हैं, दैट्स कॉल्ड इनहेरिटेड ट्रेड। तो अब आप समझ गए होंगे व्हाट्स एन इनहेरिटेड ट्रेड। अ ट्रेड ऑफ एन ऑर्गेनिज्म which is caused by the change in the genes is called inherited trait। जैसे हम अपनी एग्जाम्पल्स लेते हैं, if our parents or they're black in color and offspring is also the black, this is an inherited trait। if a father is having the blue eyes and the same gene is being transmitted to an offspring is also having the blue eyes, or he or she is having also the blue eyes, we just call it's an inherited trait। any of the feature, any of the characteristics, any of the trait, any of the feature that we receive from our parents because of the genes, because the gametes are linked, the reproductive cells are linked with that, and we receive it because of the gametes, because of our genes, then it is to be called as inherited trait। जैसे मैं यहाँ पे बिटल्स की एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं बिटल्स की ही एग्जांपल आपको बिटल्स की एग्जांपल से समझाता हूँ। मानो कि एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में नंबर ऑफ बिटल्स रहती है, और इन बिटल्स का कलर जो है, ये सारे बिटल्स जो है इनका कलर, बीटल्स जो है इनका सारी कलर, बीटल्स का कलर है दैट्स रेड। मानो कि there are thousands or populations of the beetles are over there, and these beetles are residing in a particular geographical area and residing over the bush, तो कलर है इनका रेड। अब क्या हो जाएगा कि because of the due to the gene, I mean say that due to the mutations in the gene, or due to the mutation in the gene, एक रेड पॉपुलेशन में एक बिटल जो होगी वो आएगी ग्रीन कलर की। मानो कि आफ्टर 2 और 3 जनरेशन्स में से ये पूरी जितनी भी बिटल्स थी ये रेड थी, लेकिन ड्यू टू सम जेनेटिक म्यूटेशंस या कुछ जीन्स में कुछ चेंजेस हो गई तो एक बिटल हो जाएगी, इसका कलर आ जाएगा ग्रीन। अब सारे बिटल्स जो है वो है रेड इन कलर, तो एक बिटल जो आई वो है, एक बिटल जो आई दैट इज ग्रीन इन कलर, तो एक बिटल इसमें ग्रीन इन कलर आया। तो अब ये बिटल जो, अब ये जीन जो होगा ट्रांसमिट हो जाएगा। अगर ये रिप्रोडक्शन करेंगे तो रेड भी रिप्रोडक्शन करेगा, मतलब ग्रीन भी रिप्रोडक्शन करेगा। मानो कि अगर
कभी ऐसा होगा कि ये मतलब मैक्सिमम जो ट्रांसमिट हो जाएंगे जीन्स वो तो रेड से हो जाएंगे, लेकिन ग्रीन से भी हो जाएगा। तो मतलब ये करेक्टर ग्रीन करेक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा। तो जितनी भी आप फ्यूचर जनरेशन्स देखोगे इसमें आप मिक्स देखोगे, रेड बिटल्स भी होंगे और ग्रीन बिटल्स भी होंगे। ठीक है, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पे ये नहीं हो जाएगा कि ग्रीन बिटल्स जो होंगे इट्स एन इवोल्यूशन। हम ये कहेंगे यहाँ पे इवोल्यूशन है। क्यों इवोल्यूशन है? क्योंकि यहाँ पे एक पूरा जो था रेड कलर, द पॉपुलेशन वायर of the population of beetles, they all were red in color, but due to some genetic change, due to some change in the genes, okay, तो इनमें से एक बिटल जो हो गई, एक बिटल जो आ गई वो ग्रीन कलर की आ गई। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये इवोल्यूशन है, ये चेंज है। क्यों चेंज है? क्योंकि इन ग्रीन बिटल्स से मतलब इट्स अ चेंज दैट हैज़ टेकन प्लेस ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इन एन ऑर्गेनिज्म। तो चेंज आई है, पीरियड ऑफ टाइम से आ गई है। तो एक पूरा जो ट्रांसमिट हो गया, जो पूरा जो नया कैरेक्टर आया, पूरा जो नया ट्रेट आया, ये आया जीनस की वजह से। ठीक है, ये आया जेनेटिक जीनस की वजह से। तो इस कैरेक्टर को हम ये कहेंगे, इस ट्रेट को हम ये कहेंगे इट्स इनहेरिटेड ट्रेट। तो अगर मैं सिंपल सी एग्जांपल आपको दूसरे तरीके से और समझाता हूँ, जैसे हम भी जितने भी कैरेक्टर जो हमें हमारे पेरेंट्स में हम अगर रिसीव करेंगे अपने पेरेंट्स से, तो ये ट्रेट्स आएंगे बिकॉज ऑफ जीन्स, वी जस्ट कॉल देम इनहेरिटेड ट्रेट्स। तो दिस इज द topic we called as acquired trait, the trait that has been acquired because of the environmental changes, and the trait that has occurred or that has transmitted because that has transmitted or that has been developed due to the genes, that has been developed due to the genes that are to be called as inherited traits. तो ये है एग्जाम्पल्स, ये है डिफरेंस बिटवीन एक्योर ट्रेट एंड इनहेरिटेड ट्रेट। ठीक है, तो जैसे मैंने अभी एग्जाम्पल समझाई कि एक बिटल बुश के ऊपर जितनी भी बिटल्स रहती हैं सारी है ग्रीन इन कलर, सारी है रेड इन कलर। तो इन बिटल्स में एक बिटल आ गई आफ्टर जो जेनेटिक एरर की वजह से, एक बिटल आ गई, उसका कलर आ गया ग्रीन। तो अब ये कलर आया बिकॉज ऑफ जीन, तो ये कलर अब ट्रांसमिट हो जाएगा फर्दर जनरेशंस टू जनरेशंस में। तो ये करेक्टर ट्रांसमिट हो जाएगा बिकॉज ऑफ जीन्स टू द फ्यूचर जनरेशंस, so it can be called as an inherited trait. So this was the differences between inherited trait and acquired trait. So thank you. In the coming lecture we will just study what's an evolution and what are the evidence of evolution, what are homologs and analogs organs, and जो important topic इसमें है वो है speciation and जो हम कमिंग फ्यूचर में पढ़ने, कमिंग टॉपिक्स में वीडियोस में अपलोड करूंगा वो है स्पेसिएशन, दैट्स एन इंपॉर्टेंट टॉपिक, एंड होमोलॉग्स एंड एनालॉग्स ऑर्गन्स दैट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन, जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जाते हैं। थैंक यू।